everyone, this is me Anurita. Welcome back to my channel, and for today's video I'm going to tell you how to make notes. So in this video I'll cover long notes versus short notes, mind maps, how to make notes in between classes, how to make notes from NCERTs, and I'll also divide the segment in the later video. You'll see 3 segments: history, geography, political science, where I'll share you my notes. Yes, you heard it right, my handwritten notes, and you'll see the sample here. So yeah, I'll also share you guys secret tips, topper tips, what you say, on how to make notes. And also at the last I'll tell you how to revise the notes, because revision is very important. आप पता नहीं जितने भी notes, designer notes क्यों ना बना लो, अगर आप उसको revise नहीं कर पा रहे हो, so all of this is a waste. So let's begin the video. First of all, very quick announcement. I have opened a Telegram channel for you guys, जहाँ पर मैं अपने resources share करूँगी. If you like the notes that I made, I'll also share it in few days in the Telegram group. Do make sure to join the Telegram group. The link is in the description. Okay, so let's begin. पहली बात तो long notes बनाए कि short notes बनाए. This is a very huge debate. I'll tell you कि आपको दोनों बनाना चाहिए. दोनों तब बनाना चाहिए जब आपके पास टाइम है. जैसे कि अभी you will have ample amount of time. Your exam is far away. इतना भी far away नहीं है कि पढ़ो ही मत, पढ़ लो अच्छे से. पर you can make both notes right now. तो पहले start with long notes, because long notes तब आपको टाइम आएंगे, काम आएंगे जब आप उसको एग्जाम में यू कैन डायरेक्टली पुट इट इन. तो यूल हैव वेरी यूज ऑफ लॉन्ग नोट्स. और शॉर्ट नोट्स आपको तब काम आएंगे जब यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर, कि आपको एक शब्द से पूरा सेंटेंस याद आ जाए. सो यू कैन गो फॉर शॉर्ट नोट्स, बट आई विल प्रेफर कि शॉर्ट नोट्स तब बनाओ जब एग्जाम जस्ट पास आएंगे एंड उसको तुम रिवाइज कर पाओ. दैट्स व्हाई यू शुड मेक शॉर्ट नोट्स एज वेल. दूसरी बात, हाउ टू मेक नोट्स. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि एनसीईआरटी से बनाना चाहिए, किसी बुक से बनाना चाहिए, किससे बनाना चाहिए. पहली बात, लोग मुझे बोलते हैं कि हम नोट्स ही नहीं बना पाते. तो गिव मी सोल्यूशन फॉर दैट. तो फॉर दैट यू कैन prefer to any book, specifically Oswald books. Oswald books are designed in such a way. Wait, I'll show Here you. I have Oswald history book, where in the first page you can see the trend analysis कि last year इस chapter से कितने mark का question आया हो. So you can do that. उसके बाद you'll see that there is in the first page there is solve paper, जिससे आपको revision हो सकता है, आपको पता चल सकता है कि कैसे टाइप के questions आएंगे. इधर आपके पास mind maps है, तो if you have note making का problem you can also refer to mind maps. And here you have long notes which is very helpful. अगर आपको नोट्स बनाने में एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिकदार परेशानी होती है तो आप यहाँ से बना सकते हो. और अदरवाइज देयर आर ऑल्सो क्वेश्चंस व्हिच यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम. Also you have competency based question map works and assessment box through which you can access yourself, and a mind map creation page. If you want to check these books out, you can do so by clicking in the link in the description box, and you'll also get 35% off if you use my code ANINDITA10. सो ये थी बुक्स की बातें. नाउ लेट्स टॉक कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हम वीडियो देख के पढ़ते हैं, तो तब नोट्स कैसे बनाना है. सो दिस इज़ द पार्ट जब मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज टीचर अपने एक पेस में पढ़ाते हैं, एंड उस पेस में हमें समझना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो मैं क्या करती थी, एक बार पढ़ने हो जाने के बाद, आफ्टर आई फिनिश द वीडियो, आई यूज टू वॉच रिकॉर्डेड वीडियोज़ 2x पे, तो मेरा टाइम वहाँ पर बच जाता था. एंड द सेम टाइम आई यूज टू मेक इन मेकिंग द नोट्स. तो उस टाइम में या फिर मैं एनसीईआरटी को खोल लेती थी, एनसीईआरटी से डायरेक्ट नोट्स बना थी, और टीचर्स की स्लाइड्स में जो पॉइंट्स है उसको भी यूज करके आई यूज टू मेक नोट्स. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक नोट्स बाय अटेंडिंग अ लाइव क्लासेस एंड ऑल्सो यूजिंग एनसीईआरटीज. एनसीईआरटी से डिट्टो यू कैन मेक नोट्स, और ऑल्सो बाय बुक्स लाइक ओसवाल बुक्स, वहाँ से भी तुम लॉन्ग नोट्स देख के उसका शॉर्ट नोट्स तुम बना सकते हो. So now I'll start subject wise note making. पहला हिस्ट्री. So हिस्ट्री में I got 100/100. So इसके लिए मैंने इसको पहले रखा है. And this also subject that I really loved, but इतना भी नहीं कि उस पर ऑनर्स कर लूँ. So yeah, beside that, let's talk about history. तो हिस्ट्री के लिए you can see here are the samples of my long notes. Starting with the long notes, here you can see कि टीचिंग ऑफ बुद्धा वाला टॉपिक जो कि बहुत डिमांडेड है, ठीक है, 5 मार्क में आता है, 8 मार्क्स में आता है, तो उसके लिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे. तो इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग नोट्स. एग्जाम में इसको डेफिनेटली मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करती थी. दिस इज वन एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ स्टूपा दैट विल सी हियर. सो मैंने स्टूपा का ड्राइंग बनाया इधर, और उसके बाद उसका पॉइंट्स लिखा, बिकॉज स्टूपास का जो क्वेश्चन होता है वो भी 8 मार्क में या 5 मार्क के आता है. तो अगर इससे कम मार्क में आता है, 3 मार्क में आता है, तो मैं इसको रिड्यूस कर देती थी, या फिर अगर ज़्यादा मार्क में आता था तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती थी. तो दैट इज हाउ यू कैन मेक नोट्स हियर. ऑल्सो देयर इज अनदर टॉपिक जो कि सेकेंड या थर्ड चैप्टर पे था,
कॉइन्स का टॉपिक है, कॉइन्स का एवोल्यूशन बताओ, कौन से ज़माने में किसने क्या कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए भी मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे। तो ऐसे हर एक टॉपिक का एक टॉपिक उठा के मैं उसका लॉन्ग नोट्स बनाती थी, सो दैट अगर इसी टॉपिक में एग्जाम में आए कोई क्वेश्चन मैं डिट्टो इसको छाप के आ सकूँ। एंड टॉकिंग अबाउट शॉर्ट नोट्स, हाँ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द टाइम लाइन एज यू कैन सी मैंने लिख के प्रैक्टिस किया था, बिकॉज CUET में टाइम लाइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में नहीं आता, है ना, मैंने ये गलती करी थी यार CUET में पढ़ लेंगे, बोर्ड्स में तो आता नहीं होगा, पर बोर्ड्स में आया था और मेरे ही सेट में आया था। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैंने लिख के प्रैक्टिस किया था। सो यू कैन सी कि बहुत गंदे हैंड राइटिंग से लिखा है, पर लिखा है, लिख के प्रैक्टिस करा करो, you'll really liked it, लाइक आपको रियली रिटेंशन होना शुरू होगा। दूसरी बात इस शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स के लिए यू सी मैंने थोड़ा सा बहुत रफली बनाया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में बहुत क्विकली बनाती सो दैट मेरे दिमाग में आ जाए, और एक फॉर्मेट में, मतलब एक डिज़ाइन में आप कैन ऐड चार्ट्स वगैरह ऑल्सो। मैंने यहाँ पर मगधा का बनाया है, एंड नीचे यू विल सी दैट आई हैव मेड द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एम्पायर, जैसे कि इंडिका था जो मेगास्थनीज ने लिखा था, तो ऐसे मैंने जस्ट ब्रीफ पॉइंट में लिखा है, क्योंकि वो सब एक ही वर्ड का वो है, आपको याद करने लायक है। जैसे कि अगर मुझे पूछा कि स्टेट द वेराइटी ऑफ सोर्सेस ऑफ मगधा एम्पायर, तो वहाँ पर अगर मैंने वो लिखा, इंडिका लिखा, तो मेरे को याद आ जाएगा वो इंडिका इज अ बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। वहाँ पर अगर मैंने कौटिल्य लिखा तो वो भी मुझे याद आ जाएगा, एंड उस वर्ड से मैं पूरा सेंटेंस फ्रेम कर सकती हूँ। तो उस टाइप के टॉपिक के लिए यू कैन गो फॉर शॉर्ट नोट्स, कि जिससे एक वर्ड से आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाए। और ऑल्सो सो दैट इज ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज गो फॉर लॉन्ग नोट्स एटलीस्ट। अगर आप शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट को स्किप करना चाहते हो, यू कैन स्किप दैट, बट प्लीज मेक लॉन्ग नोट्स, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे सेट पे आए हुए थे, जो जिसका लॉन्ग नोट्स मैंने आराम से प्रिपेयर किया था, इसलिए मैं आराम से लिख के आ पा रही थी, क्योंकि मेरे को दिमाग में था कि हाँ ये पॉइंट्स मैंने लिखा है वहाँ पर, सो आई कैन राइट इट डाउन। NCERT से डायरेक्ट मैं पढ़ना इसलिए प्रेफर नहीं करती थी, क्योंकि NCERT इज़ अ वेरी वास्ट बुक, और सब लाइन वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं NCERT से पढ़ के डायरेक्ट जाती नोट्स नहीं बना के, तो मैं सब लाइन्स में मेरी खिचड़ी बन जाती और पता नहीं मैं क्या लिख के आती एग्जाम में। तो दैट इज़ द थिंग, इसलिए मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती थी, स्पेशली फॉर हिस्ट्री। प्लीज़ मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ बनाओ लॉन्ग नोट्स, नहीं तो यू विल सफ़र अ लॉट। क्योंकि मैं ऐसी थी, मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाए, मैंने 11th तक दूसरों के नोट्स से ही पढ़ा है, 10th में भी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। तो मेरा ऐसा था कि यार क्लास 12th में क्यों ही नोट्स बनाऊँ, मैं बाद में देखा जाएगा। बट देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ तो मेरा तो काम खत्म है, तो इसलिए मैंने फिर नोट्स बनाया। ओके, सो दैट इज फॉर हिस्ट्री। Now let us go for political science. So political science का भी I'll divide it into long notes and short notes, and then last में I'll give you tips. Long notes के लिए you'll see here, पहला is the श्रीलंका वाला question. You'll see दो पार्ट में मैंने लिखा है श्रीलंका वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत बार आता है, पर प्रीवियस ईयर में आता था, आजकल पता नहीं, आई एम नॉट वेरी, मेरे पेपर में तो नहीं आया था। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऐसे मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे, और उस वाले चैप्टर में तो बहुत ईजी है, जिस वाले चैप्टर कंटेम्प्रेरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया था शायद, तो वहाँ पर नेपाल का एक आप बना सकते हो, एक आराम सा पॉइंट्स बन जाएगा, चाइना का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का। सो मतलब वैसे टाइप ऑफ टॉपिक्स उठाओ, हेडिंग्स उठाओ और उसके पॉइंट्स लिख दो। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई डिड। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना जो कि एग्जाम में लिख के आ सकते हो, दैट इज द थिंग। सो यू कैन सी हियर श्रीलंका का। ऑल्सो यहाँ पर मैं आपको कंट्राडिक्ट करके दिखाती हूँ कि इसका मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाई थी। तो देयर इज, यू सी द शॉर्ट नोट्स ऑफ श्रीलंका वाला टॉपिक, सेम टॉपिक, बट आई थिंक अभी मैं ऐसे स्क्रीन पे डाल देती हूँ दोनों, यहाँ सेम टॉपिक, बट यू कैन सी दैट हियर इज द लॉन्ग नोट्स, हियर इज द शॉर्ट नोट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। इवन तो आपको लगेगा कि इतना भी वास्ट डिफरेंस नहीं है, बट यू विल सी कि शॉर्ट नोट्स वाले में मैंने समराइज करने की कोशिश की कि एक वर्ड से मेरे को सब कुछ याद आ जाए, और लॉन्ग नोट्स वाले में मैंने जितना लिख सकती हूँ उतना लिखा है, तो दैट मैं लिखते लिखते मेरे को याद हो, पहली बात। और दूसरी बात कि एग्जाम में जब मैं लिखूँ तो मेरे को याद आ जाएगा कि इसके नीचे या फिर इसके आगे मैंने क्या लिखा था। सो दैट इज द थिंग। दूसरी बात, द डेट्स। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जो इंडिया वर्ल्ड वाला बुक में से डेट्स नहीं आता एग्जाम में, पर मेरे वाले में तो आया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वेरी रिलेटेड टू स्टफ आया था। तो इसलिए आई सी कि एक बार आंख मार के जाओ। और CUET के लिए तो भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक जितना वेरी बोलो उतना कम है। CUET के लिए डेट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट मच। बट हाँ, और टीचर्स से, क्लासेस से कैसे नोट्स बनाए वो तो मैंने बोल ही दिया। और डेट्स को जस्ट एक बार आंख मार के जाओ कि अगर ऐसा आया तो यू कैन जस्ट, आपको जस्ट मेमोराइज हो जाए, और दैट इज़ द थिंग। और मैंने डेट्स को बहुत सुंदर से लिखा, इतना सुंदर से आप मत लिखना, नहीं तो एग्जाम में कट जाएगा। बिकॉज इतना आप अगर धीरे धीरे
इफ़ यू हैव द टैलेंट कि आप सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो और पढ़ाई भी अच्छे से मेकअप कर सकते हो, सो यू कैन डू इट। बट मैं ऐसी नहीं थी। मैं एक ही खिचड़ी पेन से अगर नोट्स बना के चली जाती थी ना, तो मेरे ज़्यादा दिमाग में रहता था और टाइम कम जाता था, दैट इज़ द थिंग। और यू कैन, इट्स योर चॉइस कि आप डिज़ाइनर नोट्स पे बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो दैट वॉज फॉर पॉलिटिकल साइंस। लीस्ट बट नॉट द लास्ट, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट जिसके मैंने 1 पेजेस बहुत बनाए। जैसे यू विल सी हियर, आई विल गिव यू दी वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर। तो यू विल सी कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वो सिर्फ मेरे को ही समझ में आएगा। पर वाटर रिसोर्सेज इज वेरी डाटा स्पेसिफिक, इवन फॉर दी बोर्ड्स का एग्जाम ऑल्सो यू नीड वेरी डाटा इन वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। और जो डाटा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, जैसे कि प्लानिंग वाला वॉज नॉट अ डाटा स्पेसिफिक चैप्टर, तो वहाँ के नोट्स मैंने ऐसे बनाए। यू विल सी द लॉन्ग नोट्स हियर। मैंने उल्टा कर दिया डायग्राम, बट देन वही, मतलब यू विल सी द ड्राउट वाला चैप्टर का नोट्स है। और ये वाला नोट्स ड्राउट चैप्टर को हमारी मैम ने दिया है। सो आवर जियोग्राफी टीचर वॉज वेरी गुड, बबीता मैम। सो शी यूज टू गिव अस लॉन्ग नोट्स देयर। तो मुझे घर में लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने से भी होता था, तो इधर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। तो उधर मेरा टाइम मेकअप हो गया। तो दैट इज द थिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग नोट्स आउट हियर। एंड ऑल्सो there is another thing that I did is to make agriculture का chapters crops का एक table. So you'll see in the screen, whole screen मैंने लगा दूंगी. So this is the table how what you can like, इसके आपको बहुत ईजी हो जाता है मेमोराइज करने में कि कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में उगता है और क्या ही था। तो आपको सब मेमोराइज हो जाता था। So you can also refer to tables like this. Talking about, oh, there is another example of notes like pots का मैंने ऐसे notes बनाया। I am not able to consider कि ये long notes है कि short notes है, इसलिए मैंने बीच में से लगा दिया। So you can also make this kind of notes. Lastly, oh yeah, और एक topic बच गया ना, how to revise. So revision के लिए one of the very important thing that I'll let everyone know is constantly पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता था एक ही टॉपिक को कितने बार पढूं, पर ना आप जितने बार पढ़ोगे आपको एक नया चीज़ पता चलेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आप सब कुछ पढ़ लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ पढ़ सकते हो पर सब कुछ याद नहीं रहता। तो दैट इज़ वाई यू कैन रिवाइज, लाइक अच्छे से बना, लाइक इट्स योर चॉइस कि आपको डिज़ाइनर नोट्स बनना है या फिर नॉर्मल नोट्स बनाना है या फिर मेरे जैसा एकदम पूरा एक ही लो क्वालिटी का नोट्स बनाना है। पर ऐसा नोट्स बनाओ जिससे आप रिवाइज कर सको, आपको रिवाइज करने में मज़ा आए। कुछ लोगों का होता है कि एकदम डिज़ाइनर नोट्स से रिवाइज करने में मज़ा आता है। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी, डू एक्स्ट्रा एफर्ट, गो फॉर दैट काइंड ऑफ नोट्स, दैट इज़ द थिंग। और दूसरी बात, गो फॉर मैप्स। मैप्स अच्छे से देखना। उस्वाल बुक्स में भी देयर इज मैप्स। इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर यूजिंग NCERT बुक, वहाँ पर भी मैप्स है। मैप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मैप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इन तीनों सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैप्स अच्छे से पढ़ के जाना। That brings us to the end of this video. I know मुझे तो लगता है कि कोई नहीं दिखता लास्ट तक वीडियो, बिकॉज यूट्यूब के एनालिसिस तो यही बोलते हैं। बट देन आई लाइक टू शेयर टिप्स, आई लाइक टू, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जितना थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम मुझे आया था, आई डोंट वांट माय जूनियर्स को भी वही प्रॉब्लम आए। तो दैट इज़ द थिंग। एंड अ क्विक लाइफ अपडेट एट द लास्ट, वी आर शिफ्टिंग टू दिल्ली। होपफुली लिस्ट आ जाएगा 16 जुलाई को, एंड आई थिंक आई विल गेट अ प्रीटी गुड कॉलेज, मे बी, fingers crossed. But yeah, we are shifting to Delhi, so 18 को we have our train, and इसके लिए पैकिंग चल रही है घर में। and the next video, long video that you will see is hopefully of packing and going to Delhi. Yeah, that is the thing. My heart is feeling of bit of heavy, क्योंकि Guwahati is a place where I was born and brought up. So living this beautiful city, something feels very empty, but I'm also, आई नो दैट फैक्ट दैट दिल्ली जो मुझे एक्सपोजर देगी, जो अपॉर्चुनिटी देगी, वो आई गेस कहीं ना कहीं गुवाहाटी नहीं दे पाएगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम मूविंग। आई एम लिविंग बिहाइंड अ वेरी close, a very दिल का टुकड़ा behind, but I think it will be all worth it. And thank you so much to all those people who are watching this video till end, because अभी मैं कुछ नहीं कर रही, I'm just randomly talking what I have in my mind. Also, I went for CUET result celebration. This is the second result celebration by CUET physics wala, and I got the opportunity to go there as well. So I'll add some clips in the last. Specifically video तो नहीं बनाऊंगी, because मुझे पता है कोई नहीं देखता और बना के कोई फ़ायदा नहीं है, but then I'll add some clips in the last. That's it for this video. Thank you so much for watching this video till here, if anyone is watching. I don't think so anyone, but okay, thank you and bye bye.